Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Students, as you know, we are going to start a new session. So I would like to welcome you all in this online session. I am from Qazi Apex Grammar School and will teach you mathematics. So today we will discuss our first chapter of maths. Students, our today's topic is operations on sets. In this unit, you will learn how to define a set, about the set operations, union, intersection and difference of two sets. To use Venn diagrams to define union and intersection of sets. To verify the commutative and associative properties of sets. Now we have to discuss about the basic concepts of sets. So our first question is, what is a set? A set is a group or a collection of distinct well-defined objects. For example, a set of crayons in a box is a set. As you see, two terms are used in the definition of set, which are well-defined and distinct. Now you have to learn the meanings of these two terms. वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली एक्सप्लेन्ड, मतलब जिस चीज़ को मुकम्मल वजाहत के साथ बयान किया जाए. डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, यानी एक ही सेट के एलिमेंट या मेंबर जो हैं वो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट्स, अ सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. इन एग्जाम्पल्स को देखते ही हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है What are these? मतलब इनकी आइडेंटिटी का हमें फ़ौरन पता लग जाता है. A set of vowels mean AEIOU and set of provinces of Pakistan means Punjab, Sindh, KPK, Balochistan. Students, here some information is given about set. The objects in a set are written within a pair of curly brackets. These objects are called members or elements of the set. Each member is said to belong to the set. The symbol is used to denote belongs to or is an element of or is a member of. For example, F is a set of ice cream flavors available at an ice cream shop. Therefore, F is equals to vanilla, strawberry, chocolate, pineapple, mango. Chocolate belongs to F, but orange not belongs to F because orange is not present over here. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि हम सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिखा जाता है उन सब को मेंबर्स या एलिमेंट्स कहा जाता है सेट का. और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू C और U बिलोंग्स टू C. ये जो साइन है इसको हम बिलोंग टू के लिए यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, now we will have to discuss how is a set represented. A set can be represented in three forms: descriptive form, set builder form, and the last one is tabular form. Descriptive form, a set described in a descriptive terms. For example, A is equals to first 5 natural numbers. यानी ये वो तरीका होता है सेट को लिखने का या ज़ाहिर करने का जिसमें हम अपना आंसर एक मुकम्मल वजाहत के साथ एक स्टेटमेंट की सूरत में देते हैं. जैसा कि फ़र्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, एज़ यू नो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5. लेकिन हम उनको लिखेंगे इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ये तरीका जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है. द सेकेंड वन इज़ set builder form, a set written as a rule. For example, A x such that x is a natural number and x is less than 6. It means
ये वो तरीका होता है किसी सेट को ज़ाहिर करने का या लिखने का जिसमें हम ये प्रॉपर नोटेशन यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स की। दिस साइन इज़ यूज फॉर सच दैट, ठीक है, जिसमें हम अपनी कंडीशन प्रॉपर बताते हैं कि ये जो x है, हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर उन सबको x के साथ रिप्रेजेंट किया है, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 6 हैं। तो ये हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, लेस देन 6 है, इट मीन्स it is from 1 to 5. And the third one is tabular form, a set with the elements of the set written directly. For example, a is equals to 1 2 3 4 5, यानी ये वो तरीका है सेट को जाहिर करने का। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम नंबर्स की फॉर्म में अपने आंसर को लिखते हैं। तीनों तरीके जो हैं वो आपके सामने हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल की नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ करते हैं, और टेबुलर फॉर्म में हम सिंपल नंबर्स और डिजिट्स में अपने आंसर को या सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. The first one is empty set, a set containing no elements. It is denoted by these two signs. एक ऐसा सेट जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट या मेंबर नहीं होता उसको हम खाली सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, b इज़ इक्वल्स टू इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के दरमियान आने वाले नंबर्स, और वो कोई नंबर नहीं होता, सो दैट्स वाई b इज़ एन empty set. Finite set, a set containing only a finite number of elements. Finite mean countable, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स और मेंबर्स को काउंट किया जा सकता है। Those types of sets are called finite sets. For example, x such that x is a square number and x is less than 20, यानी x जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो स्क्वायर नंबर्स हैं और लेस देन 20 हैं। सो दीज नंबर्स विल बी 1 4 9 एंड 16, और इस सेट में एलिमेंट्स और मेंबर्स को काउंट करना आसान है। यू कैन ईजिली काउंट दैम 1 2 3 4, यानी ये टोटल 4 है। सो वो सेट्स जिनके एलिमेंट्स और मेंबर्स को ईजिली काउंट किया जा सके, दोज टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड फिनिट सेट. The third one is infinite set, a set which is not finite, यानी ऐसा सेट जो कि फिनिट नहीं होता, यानी जिसको ईजिली काउंट नहीं किया जा सकता, जिसके एलिमेंट्स और मेंबर्स को। फॉर एग्जांपल, d such that x such that x is an integer x is greater than 10, यानी 10 से बड़े नंबर्स का सेट। तो काउंटिंग में 11 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर ग्रेटर दैन 10, इसलिए हमें उनकी एग्जैक्ट तादाद का या नंबर्स का आइडिया नहीं है कि वो कितने होंगे। सो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, d इज़ इक्वल्स टू 11 12 13 14 15 अप टू सो ऑन, यानी इसके एलिमेंट्स और मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते कि वो 10 है 15 है 20 है, इसलिए सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इन्फिनिट सेट्स. स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा. मेरी आप सबसे एडवाइस है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा घर में रिवाइज़ कीजिए और याद कीजिए. हैव अ गुड डे. अल्लाह.